جی تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ہینڈ بال کی میئرمنٹ کورٹ کی، تو اب آگے ہمارا ہے کہ جو اس کے کھیلنے کے قوانین ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کھیلنے کے قوانین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ٹیم ہے وہ کتنے کھلاڑیوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ ایک ٹیم جو ہے وہ 14 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ کھیلنے والے کھلاڑی جو ہیں وہ 7 ہوتے ہیں۔ انہیں 7 کھلاڑیوں میں ایک گول کیپر ہوتا ہے، ایک گول کیپر ہے اور 6 جو ہے وہ کورٹ کے کھلاڑی ہیں۔ باقی تمام کھلاڑی جتنے بھی ہیں وہ تبدیلی کے لیے موجود ہوں گے۔ تو میدان میں کھیلنے والا کھلاڑی جو ہے وہ کسی بھی وقت گول کیپر بن سکتا ہے، اس کی ذمہ داریاں لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر گول کیپر ہے تو وہ کسی بھی وقت جو میدان میں کھیلنے والے کھلاڑی کی ذمہ داریاں لے سکتا ہے۔ تو میچ کے آغاز کے لیے کم از کم 5 کھلاڑیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کھلاڑیوں کی تعداد 5 سے کم ہوگی تو ریفری اس بات کا مجاز ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے گیم کو مکمل طور پر معطل کر دینا ہے یا ابھی گیم کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ وہ آل ان آل ہے اس وقت۔ تو اس کے بعد جو ٹیم ہے اس کا جو ساز و سامان ہے وہ کیا ہوگا، تمام کھلاڑیوں کی یونیفارم جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوگی، ایک جیسی ہوگی، لیکن دونوں ٹیموں کی جو وردیاں ہیں ان میں واضح فرق ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ دونوں ٹیموں کو ایک ہی کلر نہیں پہنایا جائے گا، ان میں واضح طور پر فرق ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو گول کیپر ہے، ایک ٹیم ہے تو اس کا جو گول کیپر ہے، گول کیپر کا اپنی ٹیم والے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان سے بھی جو کلر ہے وہ مختلف رنگ کا پہنے گا۔ یونیفارم کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں اور یا لوگو بھی بنے ہوتے ہیں مختلف جو سپانسرڈ ہیں کمپنیز، ان کے کھلاڑیوں کا نام ہوتا ہے، جو نمبر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ نمبر جو اگر یونیفارم پر نمبر واضح ہوں گے جن کی اونچائی کم از کم 20 سینٹی میٹر ہوگی، یعنی کہ جو پشت کے اوپر نمبر لگے ہیں ان کی اونچائی 20 سینٹی میٹر ہوگی، اور جو فرنٹ سائڈ پر یعنی کہ چھاتی کے اوپر ہیں ان کی اونچائی 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یہ نمبر 1 سے لے کر 99 تک اس کے درمیان ہوتے ہیں۔ نمبر کا کلر جو ہے وہ یونیفارم کے کلر سے مختلف ہوگا، یہ نہیں ہے کہ یونیفارم جو ہے وہ گرین کلر کی ہے تو جو نمبر ہے وہ بھی گرین کلر کے ساتھ ہی لگایا جائے، تو اس لیے یہ ڈفرنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کھلاڑی کیا پہنے گا، سپورٹس کے شوز پہنے گا، اور سپورٹس کے شوز کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہوگی جس سے یا تو کھلاڑیوں کو فائدہ حاصل ہو یا کسی دوسرے کھلاڑیوں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں، ہیڈ پروٹیکٹر یعنی کہ سر پر چڑھانے والا جو کھول ہوتا ہے، ہیلمٹ وہ، یا چہرے پر ماسک، ہاتھوں پر چڑھانے کے لیے گلوز، بریسلیٹ، گھڑی، انگوٹھی، لاکٹ، زنجیر یا بالیاں، اینک یا بینڈ وغیرہ، یہ کوئی بھی چیز کھلاڑی کو پہننے کی جو پہن نہیں سکتا۔ اس میں ایک لفظ لکھا ہے ویزیبل پائرسنگ، تو یہ کون سی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ اگر آپ افریقی قوم کو دیکھتے ہیں تو جو انہوں نے چہرے کے اوپر مختلف قسم کے چھید کروائے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ گزار کے اپنے، یعنی کہ چہرہ ہے تو اسی کے اوپر چھید کروائے ہیں چیکس کے اوپر، تو اس کے اندر سے جو ہے وہ مختلف چیزیں انہوں نے گزاری ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو کھلاڑی نے نہیں پہننی ہوگی، ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی اس کے ٹیم افیشل۔ تو جو ٹیم کے افیشل ہیں وہ 4 افیشل، آپ کو جیسے بتایا پہلے کہ 4 کھلاڑی میکسیمم ایک ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، افیشل ہوتے ہیں۔ وہ جو افیشل ہیں وہ دوران کھیل تبدیل نہیں کیے جا سکتے، یہ جو جب میچ آپ نے گیم میں پہنچ چکے ہیں تو وہی افیشل آپ کے رہیں گے۔ ان افیشل 4 بندوں میں سے ایک بندے کو ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے جس کو رسپانسبل ٹیم افیشل کہا جاتا ہے۔ وہ ذمہ دار ہوتا ہے کسی بھی ٹائم کیپر سے بات کرنی ہے، کسی سکور کیپر سے بات کرنی ہے یا ریفری سے بات کرنی ہے، کوئی بھی گیم کے ریلیٹڈ، تو وہ بندہ ذمہ دار ہوگا۔ باقی 3 کسی بھی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ تو جو ٹیم ہے، ٹیم کے جو افیشل ہیں ان کو کورٹ کے اندر گیم کے دوران داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کر کوئی افیشل داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان سپورٹس مین لائک کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، تو مخالف ٹیم کو جو ہے وہ فری تھرو دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ٹیم افیشل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو پلیئر ہے، تبدیلی کے لیے کھلاڑی جو ہے وہ کورٹ کے اندر کسی بھی وقت بار بار جو نوٹیفائی ان کو ٹائم کیپر کو یا سکور کیپر کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ جب ان کو پہلے لسٹ مل گئی ہے تو کسی بھی وقت کھلاڑی
कोर्ट के अंदर दाखिल हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि बाल उस वक्त खेल से रुकी हो, यानी खेल रुका हुआ हो या बाल खेल के बाहर हो। तो कोई भी खिलाड़ी कोर्ट को छोड़कर बाहर आ सकता है, लेकिन तब्दीली का तरीकाकार क्या है, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन लाइंस हैं उसी एरिया से एक खिलाड़ी आपका बाहर आएगा तो दूसरा अंदर जाएगा, क्योंकि एक टीम के 7 खिलाड़ी हैं, अभी अंदर वाला खिलाड़ी पहले बाहर आया नहीं और आपका पहले ही अंदर चला गया, तो इसका मतलब टीम के खिलाड़ी कोर्ट के अंदर कितने हैं, 8 खिलाड़ी हैं। तो अगर इस तरह कोई करता है, इलीगली इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, टीम जायद खिलाड़ियों से खेलती है, तो फिर खिलाड़ी को 2 मिनट की सस्पेंशन जो है वो दे दी जाती है, 2 मिनट के लिए उसको मुअत्तल किया जा सकता है। और उसके बाद जो बाकी वाला टीम है, यानी कि 7 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, एक खिलाड़ी को अगर 2 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया है, तो बाकी जो खिलाड़ी 6 खिलाड़ी रहेंगे, एक 2 मिनट के लिए वो टीम एक कम खिलाड़ी के साथ मैच कंटिन्यू रखेगी। अगर 2 मिनट अभी उस बंदे को पहले सस्पेंड किया हुआ है, अभी 2 मिनट उसके पूरे नहीं हुए, वो दोबारा अंदर दाखिल हो गया, तो मजीद उसका जो टाइम है वो 2 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो और खेल का आगाज क्या कैसे किया जाता है, फ्री थ्रो के जरिए मुखालिफ को फ्री थ्रो दी जाती है, उससे इसका जो खेल का बाकिया आगाज जो है वो किया जाता है। प्लेइंग टाइम है, तो प्लेइंग टाइम 30-30 मिनट के 2 हाफ के ऊपर ये मैच मुश्तमिल होता है पूरा। तो टाइम कीपर इसी मकसद के लिए बैठा होता है, स्टॉप वॉच के ऊपर टाइम चल रहा होता है। रेफरी की जिम्मेदारी है, वो जब मुनासिब समझता है खेल को रोकना, तो टाइम कीपर को फिर वो इशारा कर देता है, जो टाइम है वो स्टॉप वॉच वो भी रोक दी जाती है। तो 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, दरमियान में जो ब्रेक होती है वो 10 मिनट की होती है। अगर तो मैच का फैसला नहीं है, यहाँ पर मैच का इख्तिताम हो गया, लेकिन मैच बराबर भी है, तो वो ड्रा ही तस्वर किया जाएगा दोनों टीमों का। उसके बावजूद ये वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर और फैसला करना भी जरूरी हो, तो फिर ओवर टाइम दिया जाता है। 2 हाफ दिए जाते हैं 5-5 मिनट के, 1 मिनट की ब्रेक के साथ। दरमियानी वक्फा जो है वो 1 मिनट का होता है और 5 मिनट का खेल होता है, फिर 1 मिनट ब्रेक और फिर 5 मिनट। अब अगर दोबारा स्कोर बराबर है तो फिर 5 मिनट के 2 हाफ दिए जाते हैं उसी तरीके से, और 1 मिनट की उनके दरमियान में ब्रेक होती है। अगर फिर दोबारा मैच बराबर होता है, होता नहीं, अगर हो जाए तो फिर मैच का जो आगाज है वो थ्रोइंग से किया जाता है। जो 7 मीटर थ्रो लाइन हमने लगाई हुई थी, 7 मीटर के फासले के ऊपर, तो वहां से थ्रो के जरिए यानी कि हर टीम को 5-5 जो है वो थ्रो दी जाती हैं। वो जो दोबारा है टास्क किया जाता है, टास्क जीतने वाली टीम फैसला करती है कि उसने पहले थ्रो करनी है या दूसरे नंबर पे उसने थ्रो करनी है। तो इस तरह जो रेफरी है वो विसल बजाता है, और जो खिलाड़ी हैं वो थ्रो करते हैं। जिस तरह पेनल्टी किक लगाई जाती हैं उसमें लगाई जाती हैं फुटबॉल में, तो उसी तरह इसमें जो है वो थ्रो जो है वो उससे करके जो मैच का जो फैसला है वो किया जाता है। उसके बाद गोलकीपर जो है उसको क्या अलाउड है और क्या उसको अलाउड नहीं है। सॉरी, टाइम आउट पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइम आउट है वो रेफरी डिसाइड करेगा कि वो उसने कब स्टार्ट करना है, मैच का दौरानिया क्या होगा, और इंटरप्शन टाइम उसने रोकना है खेल या नहीं रोकना। टाइम आउट कब लाजमी बन जाता है, जब किसी खिलाड़ी को आपने 2 मिनट की जो सस्पेंशन देनी हो, 2 मिनट की सस्पेंशन देनी है, तो उस दौरान जो है वो खेल को रोका जाता है। और ये रोकना कितनी देर के लिए होता है, 1 मिनट के लिए जो खिलाड़ी खेल है वो रोका जाता है। तो टाइम आउट इज ग्रांटेड, देयर इज अ विसल सिग्नल, विसल सिग्नल के जरिए टाइम कीपर को आगाह किया जाएगा। तो 1 मिनट के लिए जो टाइम कीपर है वो भी जो स्टॉप वॉच जो चल रही है उसको भी रोक दिया जाता है। तो हर टीम के पास इख्तियार है जब वो एक मैच में 3 टाइम आउट ले सकते हैं, टीम टाइम आउट उसे कहा जाता है, 3 ले सकते हैं एक मैच के लिए, लेकिन हर हाफ में मैक्सिमम 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर एक हाफ में आपने 1 लिया है तो दूसरे में आपको 2 मिल जाएंगे। अगर आपने पहले हाफ में ही 2 टाइम आउट ले लिए तो दूसरे हाफ में आपको 2 टाइम आउट नहीं मिलेंगे, बल्कि 1 टाइम आउट मिलेगा। मैक्सिमम 3 है, 3 टाइम आउट ले सकते हैं, और हर हाफ में जो एक हाफ है उसमें 2 टाइम आउट जो आपको मिल सकते हैं। टाइम आउट का दौरानिया 1 मिनट का होगा। बाल को खेलना कैसे है, बाल को किसी भी सिम्मत में थ्रो, कैच या उसको पुश करके हिट करके, चाहे हाथों से, अपने सर से, टारसो, थाई और नी,
ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہینڈ بال میں 3 کا لفظ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بال کو میکسیمم آپ 3 سیکنڈ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں جب آپ حرکت نہیں کر رہے بال نہیں, یا فار ایگزامپل بال نیچے پڑا ہے, آپ نے اس کو اٹھایا تو آپ کے پاس 3 سیکنڈ کا ٹائم ہے کہ آپ نے اس کو تھرو کرنا ہے, پاس کرنا ہے, جو بھی اپنے ساتھی کو دینا ہے یا خود لے کر جانا ہے ڈریبلنگ کرتے ہوئے, تو آپ کے پاس 3 سیکنڈ کا ٹائم ہے. ٹیک اے میکسیمم آف 3 اسٹیپ. اسی طرح اگر آپ نے ڈریبل کر رہے تھے, بال کو پکڑ لیا, تو آپ 3 اسٹیپ اس میں لے سکتے ہیں. باسکٹ بال میں کیا ہوتا تھا, ڈریبلنگ کرتے ہوئے اگر آپ نے بال پکڑ لیا تو اس کے بعد آپ آگے نہیں جاتے, وہیں سے آپ ایک پاؤں آپ کا پیوٹ فٹ ہو جاتا تھا اور آپ اس کے اوپر جو اپنا پاؤں ہے وہ گھماتے تھے اور پاس کرتے تھے. اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے, 3 اسٹیپ آپ آگے قدم مزید لے سکتے ہیں بال کو پکڑتے ہوئے. اور یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ بال پکڑ لیا, 3 اسٹیپ لے لیے ہیں, اس کے بعد آپ بال کو پاس ہی کریں گے. آپ دوبارہ اس میں باسکٹ بال میں تو آپ دوبارہ نہیں کر سکتے, ہینڈ بال میں آپ اس کو دوبارہ سے ڈریبلنگ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے بال کو کھیلنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد ہے جی گول کیپر کو کیا الاؤڈ ہے. گول کیپر بال کو جسم کے کسی بھی حصے سے کھیل سکتا ہے. گول ایریا کے اندر وہ بال کو پکڑ کر روک سکتا ہے, اس کو قابو کر سکتا ہے, موو کر سکتا ہے. بال کے بغیر وہ گول ایریا سے باہر آ سکتا ہے, بال کے بغیر. اگر بال اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو تب وہ گول ایریا میں باہر نہیں آ سکتا. تو گول کیپر جو ہے اس کو کیا الاؤڈ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت جس سے آپ کا جو کھلاڑی ہے اپوننٹ, اس کے دفاع میں کوئی خطرہ بنے, اس کے لیے آپ خطرے کا باعث بنے, تو یہ گول کیپر کو الاؤڈ نہیں ہے. اس کے بعد لیو دا گول ایریا ود بال, کہ بال آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ گول ایریا کو چھوڑ کر باہر نہیں آ سکتے. اگر آپ آئیں گے تو مخالف جو ٹیم ہے اس کو فری تھرو اوارڈ کر دی جائے گی. اس کے بعد بال کو ٹچ کرنا کب, جب وہ رکی ہوئی ہے, کہاں پر, گول ایریا کے اندر ہے, تو اسٹیشنری رولنگ آن دی فلور آؤٹ سائڈ دی گول ایریا, while he is inside the goal area. خود گول کیپر گول ایریا کے اندر کھڑا ہوا ہے, بال اس گول ایریا کے باہر ہے, رکی ہوئی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ باہر سے اس کو پکڑ کر اپنے اندر طرف لے آئے. تو اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر بھی فری تھرو اوارڈ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد ہے جی وہ گول ایریا میں بال کو لے کر باہر سے اندر نہیں آ سکتا. بال کو پاؤں ٹچ دی بال ود فٹ اور دی لیگ بلو دی نی وین اٹ از موونگ آؤٹ ٹورڈ دی پلینگ ایریا. پلینگ ایریا میں جا کر وہ بال کو پاؤں کے ساتھ یا لیگ کے ساتھ, ان چیزوں کا اسے الاؤڈ نہیں ہے. گول کیپر جو 4 میٹر کی لائن ہے اس کو کراس نہیں کرے گا. کب, جب کہ 7 میٹر کے ایریا سے تھرو لگائی جا رہی ہوگی, 7 میٹر تھرو لگائی جا رہی ہو, تو جو گول کیپر ہے وہ 4 میٹر کا جو ایریا ہے اس سے آگے نہیں آ سکتا. اس کے بعد ہے جی گول ایریا میں کھیلنا. گول ایریا میں کیسا کون کھیل سکتا ہے, صرف گول کیپر گول ایریا میں کھیل سکتا ہے. کورٹ کا کوئی بھی کھلاڑی اگر گول ایریا میں داخل ہو تو اس کے اوپر درج ذیل پینلٹی جو ہے وہ لگ سکتی ہے. فار ایگزامپل کون سی, گول کیپر تھرو مل سکتی ہے. کس کو ملے گی, گول کیپر تھرو گول کیپر کو ہی ملے گی. کب ملے گی, جب آپ کا مخالف کھلاڑی آپ کے گول ایریا میں داخل ہو جائے تو بال کا قبضہ اس سے, پوزیشن جو ہے وہ اس سے اس کی چھن جائے گی, اور بال کس کے قبضے میں آ جائے گی, گول کیپر کے, اور کھیل کا جو آغاز ہے وہ گول کیپر تھرو سے کیا جائے گا. اس کے بعد فری تھرو ملتی ہے, وہ کب ملتی ہے, جب کوئی کورٹ دفاعی ٹیم کا کھلاڑی داخل ہو اور اس سے وہ کوئی چانس یا فائدہ حاصل کر رہا ہو, تو اس صورت میں مخالف ٹیم جو ہے اس کو فری تھرو دی جا سکتی ہے ودآؤٹ ڈسٹرائنگ اے چانس آف اسکورنگ. اب یعنی کہ وہ اس میں فائدہ تو حاصل کر رہا ہے لیکن وہ گول ہونے کا یقینی موقع ان کا ضائع نہیں کروا رہا ہے. یعنی کہ وہ دوسرا کھلاڑی گول کرنے لگا تھا تو اس نے پیچھے سے ہاتھ ہی پکڑ لیا تھرو کرتے ہوئے, تو یہ یقینی موقع ہے کہ وہ گول ہو سکتا تھا. تو اگر اس صورت کا بھی فاؤل کرتا ہے تو اس صورت میں اگر اس صورت کا کوئی کرتا ہے فاؤل تو پھر 7 میٹر جو تھرو ہے وہ 7 میٹر کے دائرے سے جو فاصلہ ہے وہاں سے تھرو کرے گا, اور اس صورت میں گول ہونے کا جب یقینی موقع ضائع کروائے گا دفاعی ٹیم کا کھلاڑی تو مخالف ٹیم کو 7 میٹر تھرو 7 میٹر
जो लाइन है उससे थ्रो दी जाएगी। तो गोल एरिया में दाखिल होने पर कब फाउल नहीं होगा? जब कोई खिलाड़ी गोल एरिया में दाखिल हो जाए इससे पहले कि बाल को वो खेल चुका था, बाल उसके हाथ में नहीं थी लेकिन वो बाल उसने पहले खेल ली, लेकिन खुद को संभालते हुए अगर वो गोल एरिया में दाखिल हो गया तो इस सूरत में कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी, लेकिन उस खिलाड़ी के लिए जरूरी है कि वो जल्दी बाहर आए और इस वो किसी जो आपका मुखालिफ है उसको भी कोई फायदा हासिल ना हो रहा हो। उसके अलावा टीम का कोई खिलाड़ी दाखिल हो सकता है या प्लेयर ऑफ वन टीम, प्लेयर ऑफ वन टीम इंटर द गोल एरिया विदाउट दी बाल, बाल के बगैर वो उसी टीम का खिलाड़ी है, बाल के बगैर वो उसमें दाखिल हो रहा है तो हो सकता है, लेकिन उससे वो अपनी टीम को कोई फायदा ना पहुंचा रहा हो तब उसको अलाउड है, कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है उससे जो सजा है और वो फायदा दे रहा है तो उस सूरत में जो आपको बताया या वो गोलकीपर थ्रो हो सकती है या फ्री थ्रो या 7 मीटर थ्रो हो सकती है। बाल कब खेल में होगा और बाल कब खेल में नहीं होगा? बाल खेल में होगा जब बाल रोलिंग ऑन द फ्लोर इनसाइड द गोल एरिया, रोल कर रहा है, स्टेशनर अभी अभी नहीं हुआ, साकर नहीं हुआ, तो ये किसके पास चला जाएगा बाल? इट इज इन द पोजेशन ऑफ गोलकीपर टीम एंड ओनली द गोलकीपर में टच इट, क्योंकि उस दूसरे गोलकीपर का जो एरिया है गोल एरिया उसमें तो कोई खिलाड़ी दाखिल नहीं हो सकता, बाल को नहीं खेल सकता, तो अपनी टीम का चाहे खिलाड़ी हो या मुखालिफ टीम का, तो उस वक्त गोलकीपर उसके कब्जे में बाल होती है और वही उसको खेल सकता है गोलकीपर थ्रो के जरिए। उसके बाद गोलकीपर में पिक इट अप विच ब्रिंग इट आउट ऑफ प्ले एंड देन पुट इट बैक इनटू प्ले, कि जैसे ही गोलकीपर उसको उठाएगा तो इसका मतलब बाल खेल से बाहर तस्वर किया जाएगा, लेकिन जब वो उसको दोबारा थ्रो करेगा तो गोल में वो बाल जो है वो खेल में तस्वर किया जाएगा। उसके बाद इट लीड टू अ फ्री थ्रो इफ द बॉल इज टच्ड बाय अ टीममेट ऑफ अ गोलकीपर व्हाइल इट्स इज रोलिंग, कि जब बाल रोलिंग कर रहा था तो गोलकीपर या टीममेट से वो टच हुआ तो ये क्या बन जाएगी? फ्री थ्रो जो है वो मिल जाएगी। द गेम इज कंटिन्यूड विद द गोलकीपर थ्रो इफ इट इज टच्ड बाय एन अपोनेंट, अगर तो मुखालिफ खिलाड़ी से टकराई थी तो फिर तो गोलकीपर ने पकड़ लिया तो गोलकीपर थ्रो होगी, अगर आपके अपने खिलाड़ी से टकराई थी तो फिर क्या हो जाएगी? फ्री थ्रो होगी। बाल खेल से बाहर कब जाता है? जब वो पड़ा हो कहाँ पर? फ्लोर इन गोल एरिया, बिल्कुल साकन हो गया, रोल नहीं कर रहा, तो उस वक्त बाल जो है वो खेल से बाहर तस्वर किया जाता है। उस सूरत में भी बाल गोलकीपर के कब्जे में होता है और गोलकीपर ही इसको उठा सकता है। गोलकीपर मस्ट पुट इट बैक इनटू प्ले, तो गोलकीपर ने उसको वापस खेल में भेजना है और गोलकीपर थ्रो के जरिए वो भेजेगा। इट रिमेन गोलकीपर थ्रो इफ द बॉल इज टच्ड बाय अनदर प्लेयर ऑफ आइदर टीम, कि अगर कोई और खिलाड़ी दूसरी टीम का भी टच करता है तब भी ये गोलकीपर थ्रो ही रहेगी, ये क्योंकि कब्जे में गोलकीपर ही उसको रख सकता है। तो उसके बाद आगे है जी प्लेइंग दी बाल, के बाल को खेलना। इफ अ प्लेयर बाल प्ले दी बाल इनटू हिज ऑन गोल एरिया, अगर वो अपने गोल एरिया की तरफ खेलता है और अगर गोल पोस्ट में बाल चली जाती है तो फिर गोल दिया जाएगा। फ्री थ्रो कब दी जाएगी? अगर बाल कम टू रेस्ट इन द गोल एरिया और इफ द गोलकीपर टच द बॉल एंड इट डज नॉट एंटर द गोल, बाल को उसने पकड़ लिया, गोल की पोस्ट में दाखिल नहीं होने दिया, तो ये क्या हो जाएगी? फ्री थ्रो। थ्रो इन कब होगी? जब बाल आपको टच होके गोल आउटर गोल लाइन जो है उनसे बाहर चला जाता है। Play continue if the ball pass through the goal area back into the playing area without being touched by the goalkeeper, गोलकीपर को टच नहीं हुआ, पीछे चला गया तो जो और फिर वापस आ गया खेलने के एरिया में तो क्या है? बाल खेल में तस्वर किया जाता है। बाल दैट रिटर्न फ्रॉम द गोल एरिया आउट इनटू द प्लेइंग एरिया रिमेन इन प्ले, तो जो बाल है वापस आ जाता है गोल एरिया में गोल एरिया से प्लेइंग एरिया में, तो वो खेल में तस्वर किया जाता है और बाल तब खेल तब भी जारी रहता है अगर बाल आपका रेफरी को टकरा जाता है, तो उस सूरत में भी खेल को रोका नहीं जाता, खेल जारी रहता है। गोल कब दिया जाता है? गोल कब होगा जी? जब भी
कम्प्लीटली जो हमारा गोल पोस्ट है उसको क्रॉस करके बाल उसके अंदर चली जाएगी, जो हमारी गोल लाइन है उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। और जो या आपका जो दफाई खिलाड़ी कोई ऐसा मौका ज़ाया करता है लेकिन उसके बाद भी मौका था, फाउल उसने कर दिया था लेकिन बाल फिर भी गोल पोस्ट में चली गई है, तो फिर वो फाउल नहीं दिया जाएगा बल्कि वो गोल ही तस्वर किया जाएगा। सॉरी, अगर गोल कैन नॉट, हाँ उस सूरत में वो किया जाएगा। A goal cannot be awarded if a referee, timekeeper or delegate has interrupted। अगर उससे पहले रेफरी ने या गोलकीपर ने या टाइम कीपर ने या रेफरी ने विसल बजा दी थी और कोई दूसरा फाउल हुआ था और उसके बाद ये बाल गया है, तो फिर ये गोल है वो नहीं दिया जाएगा। और गोल कब दिया जा सकता है? अगर कोई खिलाड़ी बाल को अपने ही गोल में थ्रो, यानी गोलकीपर थ्रो कर रहा था, उस सूरत में बाल उससे स्लिप हुई और अपने गोल एरिया में दाखिल हो गई, तो उस सूरत में गोल नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज अगर किसी खिलाड़ी अपने ने बाल फेंकी गोलकीपर की तरफ, गोलकीपर से नहीं पकड़ी गई, बाल गोल एरिया में दाखिल हो गई, तो मुखालिफ टीम को गोल अवार्ड कर दिया जाता है। तो जीतता कौन है? जिस तरह फुटबॉल में जो टीम ज्यादा गोल करेगी वो टीम विनर जो है वो कहलाएगी। अगर बराबर आ जाए मैच, तो आपको तरीका जो पहले बता दिया है कि बराबरी में किस तरह फैसला करते हैं, तो उसी तरीके से जो इसका फैसला है वो किया जाता है। तो उसके बाद 5 थ्रो हैं मुख्तलिफ तरह की जो अहम है। ये अगर 5 थ्रो आपको पता होंगी तो हैंडबॉल आप यानी कि खेलने के ये 5 ही किस्में हैं, 5 तरीके से थ्रो की जा सकती है। 5 मुख्तलिफ थ्रो हैं, उनमें कौन कौन सी है? एक तो थ्रो ऑफ है, दूसरी थ्रो इन है, तीसरी गोलकीपर थ्रो है, चौथी फ्री थ्रो है और पांचवी 7 मीटर के एरिया से जो थ्रो की जाती। तो ये 5 थ्रो है। अगर आपको ये पता होंगी तो आप आसानी के साथ हैंडबॉल का मैच जो है वो खेल सकते हैं। थ्रो ऑफ क्या होती है? खेल का आगाज थ्रो ऑफ से किया जाता है। जिस तरह की कॉफ थी फुटबॉल में, तो इसी तरह थ्रो ऑफ हैंडबॉल में थ्रो ऑफ होती है। इससे मैच के आगाज से पहले क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है। टॉस के बाद फैसला करती है टीम कि उसने साइड लेनी है, बाल का कब्जा लेना है। अगर वो बाल का कब्जा लेती है तो दूसरी टीम दूसरी तरफ चली जाती है और ये मैच थ्रो ऑफ से आगाज करेगी। थ्रो ऑफ का कहाँ से किया जाएगा? जो थ्रो ऑफ एरिया बनाया वो सर्कल सेंटर लाइन के ऊपर जो मौजूद है उस एरिया में जब थ्रो ऑफ कर रहे होंगे तो तमाम खिलाड़ी अपनी अपनी साइड के ऊपर रहेंगे, कोई दूसरे की साइड में दाखिल नहीं हो सकता जब खेल का आगाज किया है। उसके बाद जब गोल होगा उस वक्त थ्रो ऑफ भी दोबारा खेल का आगाज थ्रो ऑफ से होगा, तो उस वक्त कोई भी खिलाड़ी कहीं भी आ जा सकता है। उस वक्त अपने अपने एंड जो साइड है उस पर होना जरूरी नहीं है। अब अगर पहली टीम है उसने पहले मैच में यानी कि पहला जो 30 मिनट का हाफ था उसमें उसने कहा जी मैं थ्रो लूंगा, तो अब जो सेकंड हाफ का आगाज है उसमें जो मुखालिफ टीम है जिसने पहले थ्रो नहीं ली वो थ्रो ऑफ के जरिए खेल का आगाज करता है। तो हर गोल के बाद खेल का जो आगाज है वो थ्रो ऑफ से किया जाता है और ये थ्रो ऑफ किसी भी सिमत में ली जा सकती है और 3 सेकंड का टाइम है। 3 सेकंड से ज्यादा जो रेफरी अगर इशारा कर दे तो 3 सेकंड के अंदर अंदर ये थ्रो ऑफ करना होगी। तो विसल बजने से पहले मुखालिफ कोर्ट में खिलाड़ी दाखिल नहीं होते, रेफरी उसका इशारा करता है, रेफरी ने इशारा किया 3 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड के अंदर ही बाल को थ्रो ऑफ करना है। गोल के बाद अगर थ्रो ऑफ का आगाज कर रहे हैं तो खिलाड़ी जहां पर मर्जी खड़े हो सकते हैं। और याद रखिएगा थ्रो ऑफ करते हुए वक्त जो मुखालिफ खिलाड़ी है उसका भी आपसे 3 मीटर का फासला होना जरूरी है। अगर आप थ्रो ऑफ से खेल का आगाज कर रहे हैं तो मुखालिफ खिलाड़ी आपसे कम अज कम 3 मीटर के फासले के ऊपर खड़ा होगा। तो ये है थ्रो ऑफ। थ्रो इन, जिसमें जिस तरह फुटबॉल में थ्रो इन होती थी तो उसमें क्या था? टच लाइन से जो साइड वाली लाइन है उसको आपके किसी खिलाड़ी का जो उससे टकरा कर बाल बाहर चली गई तो मुखालिफ टीम जो है उसको थ्रो इन दी जाती। तो उसी तरह बिल्कुल सेम कि अगर बाल साइड लाइन को क्रॉस कर जाए तो भी मुखालिफ खिलाड़ी जो है उसको थ्रो इन अवार्ड की जाएगी। और इसी तरह अगर बाल गोल लाइन, यानी कि गोल लाइन कौन सी? आउटर गोल लाइन, गोल पोस्ट के दरमियान वाली नहीं,
अगर तो वो क्रॉस कर गई वो तो गोल हो गया, अगर जो साइडों के ऊपर जो आउटर गोल लाइन है वो क्रॉस कर गई तो वहां भी थ्रो इन दी जाती है। फुटबॉल में तो कॉर्नर किक है तो वहां पर क्या हो जाएगा, थ्रो इन दी जाती है। अगर ऊपर जो सीलिंग है या फिक्सचर है या छत के साथ टकरा जाती है बॉल तो दोबारा खेल का आगाज थ्रो इन से किया जाता है। तो थ्रो इन जो है वो रेफरी के इशारे के बगैर ली जाती है, जहां से बॉल बाहर जाती है वहीं से इसका आगाज किया जाता है। और थ्रो इन करते वक्त मुखालिफ जो खिलाड़ी है उसका 3 मीटर के फासले के ऊपर होना जरूरी है। उसके बाद गोलकीपर थ्रो है। गोलकीपर थ्रो कौन कर सकता है, चूंकि गोलकीपर खुद ही कर सकता है, गोल एरिया में खेलने का मिजाज भी वो है। तो जब कोई मुखालिफ खिलाड़ी गोल एरिया में दाखिल होगा बॉल का कब्जा उससे लेकर गोलकीपर के पास चली जाएगी, गोलकीपर उसको थ्रो करेगा। गोलकीपर गोल एरिया में बॉल अगर को कब्जे में ले लेता है, बॉल पड़ी थी उसने उसको उठाया तो वो खेल का आगाज गोलकीपर थ्रो से करेगा। बॉल अगर मुखालिफ टीम का खिलाड़ी गोल एरिया में पड़ी बॉल को हाथ भी लगा ले, छू भी ले, टच भी कर ले, उस सूरत में भी बॉल जो है वो गोलकीपर के कब्जे में रहेगी, वो दूसरा नहीं ले सकता। खेल का आगाज दोबारा गोलकीपर थ्रो से किया जाएगा। तो इन तमाम सूरतों में जो खेल का आगाज जो है वो गोलकीपर जो है वो खुद करता है और गोलकीपर थ्रो के जरिए करता है। उसके बाद है फ्री थ्रो। किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी कहीं से भी हो गई तो उस सूरत में क्या है, फ्री थ्रो लगाई जाती है। इफ द रेफरी इंटरप्ट द गेम, अगर रेफरी भी मैच को रोकता है तो दोबारा खेल का आगाज फ्री थ्रो से किया जाता है। जिसके टीम के कब्जे में बॉल थी और उसने वायलेशन की रूल की तो मुखालिफ जो टीम है कब्जा उसको मिल जाएगा, और जिस टीम के कब्जे में पहले बॉल थी वो कब्जा जो बॉल का कब्जा वो खो देगी। दूसरी जो टीम है वो खेल का आगाज करेगी किस से, थ्रो फ्री थ्रो से। कहाँ से ली जाएगी, जहां पर कानून की खिलाफ वर्जी हुई थी। तो इसमें भी यही है कि कम अज कम जो मुखालिफ टीम है, मुखालिफ खिलाड़ी है, फ्री थ्रो करते वक्त उसका 3 मीटर के फासले पर होना जरूरी है। उसके बाद है जी 7 मीटर थ्रो। ये कब लगाई जाती है, जब गोल होने का यकीनी मौका था, वो गोल कर रहा था, आपका दफाई खिलाड़ी ने उसको कोई ऐसा डॉज करवाया या उसको गिरा दिया तो गोल होने का यकीनी मौका जाया करवाया, तो उस सूरत में 7 मीटर का जो फासला है वहां पर वो खड़ा होगा एक ही खिलाड़ी, वो 7 मीटर की लाइन से पीछे खड़ा होगा और उससे 1 मीटर पीछे तक खड़ा हो सकता है। ये नहीं कि पीछे ज्यादा पीछे भी नहीं जाएगा, वो 7 मीटर की जो लाइन है वहां पर खड़ा होगा। आपका गोलकीपर गोल पोस्ट से आगे हो सकता है, कहाँ तक, जो 4 मीटर का एरिया, 4 मीटर की जो लाइन है उससे पीछे पीछे रहेगा, तो उस एरिया के अंदर वो खड़ा होकर गोल को रोकने की कोशिश करेगा। तो 7 मीटर की थ्रो लगाने के लिए भी 3 सेकंड का वक्त होगा। रेफरी इशारा करेगा तो 7 मीटर लाइन के पीछे से वो जो बाल को गोल में फेंकने की कोशिश करेगा। अगर बाल गोल में चली जाती है तो गोल तस्वर किया जाता है, अगर वो बाल को कब्जे में कर लेता है तो दोबारा खेल का आगाज गोल कीपर थ्रो से किया जाएगा। तो उसके बाद फाउल है। फाउल क्या है कि जो बाल है उसको कंट्रोल टू आफ्टर द बॉल हैज बीन कंट्रोल टू टच इट मोर देन वंस unless it has touched the floor and other player or the goal in the meantime। अगर बाल को कब्जे में ले लिया गया है तो उसको बार बार जो है वो टच करना मोर देन वंस, एक ही खिलाड़ी का, जब तक कि वो फ्लोर से ड्रिबल ना आप कर ले या अपने किसी खिलाड़ी को पास ना दे दे तब तक उसको क्या, इसको फाउल तस्वर नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने बाल पकड़ ली है और टच कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप उसको दोबारा खेल सकते हैं, ड्रिबल कर सकते हैं। उसके अलावा बाल को आप हिट करते हैं अपने हाथों से तो कोई फाउल नहीं है, सॉरी, इट इज नॉट परमिटेड टू, इसकी इजाजत नहीं है बाल पुल और हिट द बॉल आउट ऑफ द हैंड ऑफ द अपोनेंट। अब मुखालिफ टीम के हाथ में बाल है, आप उससे खींच कर धक्कम पेल करके उससे बाल नहीं ले सकते। टू ब्लॉक द अपोनेंट विद आर्म, अपने हाथ आगे करके खिलाड़ी को रोक नहीं सकते, ना अपनी टांगे आगे करके अपने मुखालिफ खिलाड़ी को आप रोक सकते हैं। पुश हिम अवे, उसे दूर धक्का नहीं दे सकते या अपनी कूनी नहीं मार सकते जिससे उसके लिए कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो उसके लिए खतरे का बाइस बने, या उसको यूनिफॉर्म से पकड़कर या उसको जिस्म से पकड़कर खींच नहीं सकते, उसको
even if he remain free to continue to the play to run at into or jump into an opponent। ना उस खिलाड़ी के ऊपर आप दौड़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं, ना उसके ऊपर आप छलांग लगा सकते हैं खिलाड़ी के ऊपर। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सूरत में आपको क्या हो जाएगा, 2 मिनट की सस्पेंशन। वो आपको पहले बता दी है कि 2 मिनट की जो सस्पेंशन है उसमें कौन सा क्या तरीका अडॉप्ट जो है वो किया जाता है। तो 2 मिनट की सस्पेंशन के जो फाउल हैं वो सारे ये आ जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन फाउल आगे देखते हैं कि किन किन बुनियादों के ऊपर खिलाड़ी जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो बॉल ही इज टू बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही गेन पोजेशन ऑफ द बॉल बट इन हिज मूवमेंट काज अ कोलिजन विद द अपोनेंट। अगर तसादम हुआ है, टकराव हुआ है, आपको क्या है कि आप उसको रोक नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। अगर आपने बाल छीनने के लिए उसके साथ टकराए हैं इस तरह से कि इंजरी के चांसेस बन सकते हैं, कोई ऐसा शदीद टकराव है तो उससे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैन नॉट रीच और कंट्रोल द बॉल बट काज अ कोलिजन। आपको पता है कि बाल मेरे काबू में नहीं है, ना ही मैं उसको पकड़ सकता हूँ, वो दूसरे खिलाड़ी के पास है, उसके बावजूद आप मुखालिफ खिलाड़ी के साथ तसादम करते हैं तो सूरत में भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अ पार्टिकुलरली रैकलेस और पार्टिकुलरली डेंजरस एक्शन, कोई ऐसा रफली या कोई खतरनाक एक्शन करते हैं उससे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। A premeditated or malicious action which is not in any way related to the game situation या शदीद किस्म की जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसके खिलाफ आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि स्पोर्ट्समैन अच्छा जो है उसके जुमरे में नहीं आती, तो उस सूरत में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो उसके बाद यानी अगर आप टीम ऑफिशियल के साथ या आप जो गेम ऑफिशियल है यानी कि रेफरी, टाइम कीपर, उनके साथ कोई ऐसे करते हैं और आपको उस सूरत में क्या है, पहले वार्निंग भी दी जा चुकी है या 2 मिनट की सस्पेंशन भी की जा चुकी है, उसके बाद वजूद आप काबू नहीं आ रहे तो उस सूरत में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो रेफरी की जिम्मेदारियां क्या हैं, एक मैच में 2 रेफरी होते हैं, हर साइड के ऊपर एक एक रेफरी होता है, उसके पास मुकम्मल इख्तियार होता है, वो गेम को कंट्रोल करता है। और उनकी मामनत के लिए कौन होते हैं, टाइम कीपर और स्कोर कीपर होते हैं। रेफरी तमाम खिलाड़ियों को और टीम ऑफिशियल को जज कर रहा होता है कि वो अपनी अपनी हदूद के अंदर रहें। रेफरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग द प्लेइंग कोर्ट, वो देखता है कि जो खेलने का कोर्ट है वो उसकी पैमाइशें बिल्कुल ठीक है, गोल ठीक है। और उसके बाद बाल जो है उसको देखता है कि कौन सी बाल से खेल का आगाज किया जाएगा। उसके अलावा दोनों टीमों की जो खिलाड़ियों की मौजूदगी है उसको यकीनी बनाता है, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह देखता है। उसके अलावा स्कोर शीट को चेक करता है और खिलाड़ियों का जो साजो सामान है जो उन्होंने पहना हुआ है वो ठीक पहना हुआ है। ensure that number of player or and official in the substitution area is within the limit, के जो खिलाड़ियों की तादाद है वो कोर्ट के अंदर और जो तब्दीली का एरिया वहाँ पर बराबर है, जो लिमिट है उसी के अंदर अंदर है। उसके अलावा तमाम जो प्रेजेंस इंश्योर करता है, प्रेजेंस एंड आइडेंटिफाई करता है वो टीम ऑफिशियल, जो हर टीम का एक जो बंदा नुमाइंदा होगा जो कि बातचीत कर सकता है उसको। उसके बाद रेफरी खेल का आगाज करवाता है किसके जरिए, टास्क के जरिए, टास्क के जरिए वो खेल का जो आगाज है वो करवाता है। तो ये रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत